ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. عزیزان من، پچھلے کچھ دنوں کے اخبارات اگر آپ دیکھیں تو دل کو دکھ دینے والی کچھ خبریں انسانی سمگلنگ کے بارے میں. لوگ بیچارے بڑے سادہ ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو 20 آدمی ادھر بلوچستان سے تھوڑا آگے لے جا کے جن کو قتل کیا گیا، وہ روزی روٹی کی تلاش، وہ بھی بھاگ گیا. پچھلی گاڑی میں وہ سوار تھا، وہ جب اگلی گاڑی میں فائرنگ ہوئی اور لوگوں کو مارا گیا تو وہ جدھر منہ اٹھا بھاگ گیا. اس کی ساری تفصیل پڑھ کے رونا آتا تھا. اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں لگتا تھا مجھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن میں بھاگ رہا تھا اور ساری رات میں بھاگتا رہا اور آخر جہاں پہنچا ہوں وہ ایک چائے کی چھوٹی سی دکان تھی. اس کو میں نے اپنی بات سنائی تو اس نے مجھے کھانا کھلایا، چائے کی ایک پیالی دی اور مجھے کرایہ بھی دیا. دیکھیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، پیارے لوگ جو انسان کی عظمت کو جانتے ہیں. اس نے اس بچے کو پیسے دیے کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. میرا آپ سے کہنا ہے کہ ملک سے باہر ضرور جائیں، آپ کا حق ہے، کمائی کریں، آپ کا حق ہے، لیکن قانونی طریقے اختیار کریں. غیر قانونی طریقوں سے کبھی آدمی پھلتا پھولتا نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی دوستوں کے لیے تحفہ بھیجا ہے. آپ کے لیے پہلا تحفہ ہے گوفی جم سم چیو سٹک کی طرف سے. گوفی جم سم چیو سٹک اپنا پیغام دیتے ہیں کہ گوفی جم سم چیو سٹک مزے میں 2 گنا. گوفی کی طرف سے آسان سا سوال ہے. اردو کے مشہور شاعر مصفی، آپ نے ان کے یہ شعر تو اکثر سنے ہوں گے. مصفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بڑا کام رفو کا نکلا. مصفی کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حمدانی مصفی. اے مصفی، تو ان سے محبت نہ کیجیے، ظالم غضب کی ہوتی ہیں یہ دلی والیاں. تشریف لے آئیں غلام حمدانی. جی، مصفی کا اصل نام تھا غلام حمدانی. مصفی وہ تخلص کرتے تھے. گوفی جم سم چیو سٹک کی طرف سے ایک اور انعام دوستوں کے لیے ہے اور سوال بڑا سیدھا سا ہے. ایس جے، انگریزی کے 2 حرف ہیں ایس جے، یہ کس جنگی اعزاز کا مخفف ہے؟ جی، ستارہ جرأت. آ جائیں. دونوں کے جواب درست تھے. آپ کے سامنے گوفی جم سم چیو سٹک کے تحفے ہیں اور ایک خالی ایک لفافہ بھی ہے جس میں آپ کے لیے کیش پرائز ہے. بسم اللہ. وائٹل اپنا پیغام دیتے ہیں کہ وائٹل پیو، زندگی جیو. وائٹل. سوال سن لیجئے. قرآن مجید میں جہاں کوئی آیت ختم ہوتی ہے وہاں چھوٹے سے گول دائرے کے اوپر چھوٹی سی توئے پڑی ہوتی ہے. بتائیے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وقف کی علامت کا نشان ہوتا ہے. جہاں یہ چھوٹی توئے ہوتی ہے جی، یہ وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے. یہاں ٹھہرنا لازم قرار دیا گیا ہے. جی جواب درست ہے بیٹا، تشریف لے آئیں. وائٹل چائے کے یہ تحفے اور یہ لفافہ آپ کو مبارک ہو. جی جی آج ایک اور ہمارے کلائنٹ آئے ہیں
विगोरीन, साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब, मां का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन विगोरीन, साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब, विगोरीन माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतर। आपका नाम जी? ऐसर अजीज। अच्छा जी, आप बेटा? अरूज अजीज। और मैं हूं तारिक अजीज। सवाल यह है कि ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को इस्लाम की दावत दी। उस पहाड़ी का नाम क्या है? ओहद। चैलेंज। नहीं सॉरी। उस पहाड़ी का नाम है जी कोहे सफा। आपकी बारी है जी। अमेरिका के महकमा दफा का मखसूस नाम क्या है? पेंटागन। पेंटागन। आपकी बारी जी। अल्लामा इकबाल की आखिरी ख्वाहिश क्या थी जो बीमारी की वजह से पूरी न हो सकी? पाकिस्तान को बनता हुआ देख सकें। चैलेंज। नो सर। बीमारी की वजह से उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो हज कर सके, लेकिन बीमारी की वजह से अल्लामा इकबाल हज पर नहीं जा सके। ये उनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी। गलती दोनों से हो गई जी। आपकी बारी है वकील साहब। गंधारा तहजीब का मरकज कौन सा शहर है? पाकिस्तान में है। गंधारा तहजीब का उसको मरकज कहा जाता है। कौन सा शहर? गंधारा तहजीब का कोयटा। पेशावर। पेशावर। और टेक्सला है जी गंधारा तहजीब का मरकज। पाकिस्तान में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? गिदू थर्मल पावर। चैलेंज। कोट अद्दू पावर स्टेशन ये मुजफ्फरगढ़ पंजाब में है जी। कोट अद्दू पावर स्टेशन। आपकी बारी है जी। एक टन में कितने मन होते हैं? 10 मन। चैलेंज। 40 मन। सुन लीजिए कि एक टन में 27 मन, 8 शेर और 12 चांक होते हैं जी। आखिरी सवाल है जी आपसे। हजर अस्वद को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में नस्ब किया तो उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक क्या थी? चैलेंज। 32 साल। 32 तो नहीं, 35 बरस थी जी। बहरहाल मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। आखिरी सवाल आपसे है जी। खतरे के निशानात सुर्ख रंग के क्यों होते हैं? ब्लड की वजह से। सुन लें कि सुर्ख रंग की शुआएं जो हैं वो कोहर और धुंध को दूसरे रंगों की निस्बत ज्यादा आसानी से चीर कर सामने आ जाती हैं, इसीलिए सुर्ख रंग को खतरे की अलामत के तौर पर रखा जाता है जी। कैसर अजीज साहब, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और आप एमए इकोनॉमिक्स हैं। उरूज अजीज, आपने वकालत पढ़ रही हैं। आपने 2 सवालों के जवाब दिए हैं। तो बहरहाल अगरचे आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हम आपको तोहफे बहरहाल दे रहे हैं। लिफाफे में कैश है और ये दूसरा विगोरीन का तोहफा ये आपके साथ जाएगा।
यही सूरत हाल आपके साथ है। जी आपके लिए तोहफा भेजा है दोस्तों के लिए दीवान फूड्स ने। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस, दीवान फूड्स। सवाल है कि 23 मार्च 1985 को किसने पाकिस्तान के वजीर आजम का हलफ उठाया? मोहम्मद खान जुनेजो। जवाब दुरुस्त है जी, तशरीफ ले आए। मोहम्मद खान जुनेजो। दीवान फूड्स के ये दोनों तोहफे आपके लिए जी, दूसरा भी आपका है। पिछले दिनों पाकिस्तान के कुछ तालिब इल्म अपने टीचर्स के साथ एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के लिए गए और ये मुकाबला दुबई में हुआ। ये फैशन शो था। वहां उन्होंने उनमें से तालिब इल्मों में से सेकंड और थर्ड प्राइज जहां के बेशुमार मुकाए हुए थे वो पाकिस्तान के लिए इज्जत समेट कर आए हैं। मेरा जी चाहा कि आपका तारुफ उनसे करवा दिया जाए। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं उनके रिंग लीडर मिस्टर नबील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ तारक अजीज साहब का और पीटीवी का कि उन्होंने आज हमें इनवाइट किया और ये एक एक्नॉलेजमेंट है हमारे लिए कि इन्होंने हमें बुलाया कि आप आके अपने कुछ मोमेंट शेयर करें। तो मैं सर की इजाज़त के साथ पहले अपने टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूँगा जो जीत के आए हैं। अपनी टीम को बुलाएं। सर बहुत शुक्रिया। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने वहां हिस्सा लिया। नबील, सिलसिला क्या था? हमारे जो क्लाइंट हैं फैजा ब्यूटी क्रीम, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो चूँकि हमारा ब्रांड है ब्यूटी से रिलेटेड, तो मोस्टली हम जाते हैं डिफरेंट फैशन, टेक्सटाइल और इस तरह के जो फीमेल ओरिएंटेड इवेंट हैं। तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे तो हर कंट्री रिप्रेजेंटेशन होती थी मगर पाकिस्तान की नहीं होती थी। तो ये एक बड़ा एब्सेंट सा फील होता था कि यार हमारे लोगों को भी आना चाहिए। तो हम पिछले कई सालों से एक फैशन शो है रनवे दुबई, उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। तो पिछले फिर 6 मंथ में हमने किया ये कि हम पूरे पाकिस्तान में एक कैंपेन चलाई और हमने कहा कि हम जो फैशन और टेक्सटाइल में हमारा इमर्जिंग टैलेंट है उसको हम ऊपर लेके आएँ, उनको ग्रूम करें और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो उस सिलसिले में फिर हमने एक कैंपेन गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर स्टार्ट की जिसमें हमें डिफरेंट सिटीज से इन स्टूडेंट्स को फाइनल किया और ये माशाल्लाह तालिब इल्म आप लेकर गए अपने साथ? सर हम टोटल 10 स्टूडेंट्स को लेके गए थे। वहाँ कितने मुल्क आए हुए थे? सर 52 कंट्रीज के जो डिजाइनर्स थे, प्रोफेशनल डिजाइनर्स, वो उधर आए हुए थे। हमारी टीम कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसा था कि 52 कंट्रीज में से 13 को उन्होंने सिलेक्ट किया था जो कॉन्टेस्ट था, जिनके सबसे अच्छे ड्रेसेस थे। उस 13 में माशाल्लाह हमारे 10 स्टूडेंट्स में से 2 फाइनल हुए 13 में। वो हिस्सा लेने वाले वो जिन्होंने जीता है सर, इस वक्त आपके साथ है? सर बिल्कुल। अच्छा जी, ये दोनों? जी सर, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन है। आप का कौन सा शोबा था? फैशन एंड डिजाइनिंग। फैशन एंड डिजाइनिंग। आपने क्या नया डिजाइन बनाया कि जिस पर आपको इनाम मिल गया? 3 ड्रेस बनाने थे, 3 ड्रेस बनाए थे हमने और जजेस आए थे 4। ये आपने खुद बनाए थे या कागज पेंसिल का ही काम था? नहीं, डिजाइन हमने खुद किए थे, तो टेलर की हेल्प से स्टिचिंग करवाई थी और एम्बलिशमेंट भी करवाई थी उसके ऊपर। आपकी सूरत हाल क्या रही? कैसा मुकाबला था जरा? ये एक इंटरनेशनल लेवल का था जहाँ पर हम लोग 14 लोग सिलेक्ट हुए थे
اور اس میں سے ہم لوگوں نے 3 پوزیشن میں سے ہم لوگوں نے 2 گیٹ کی, ایک سیکنڈ اور ایک تھرڈ. اور اس کے بعد ہم لوگ بیسیکلی ہم لوگ گجرانوالہ گفٹ یونیورسٹی سے ہیں, اور فائزہ بیوٹی کریم کے جو انہوں نے ایک اپنا سٹارٹ کیا تھا لکی ڈرا, اس پہ ہم لوگوں کی سلیکشن ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے رن وے دبئی میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ پھر ہماری سلیکشن ہوئی. اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنے ڈریسز جو تھے انہوں کی جو ڈیمانڈ تھی 3 ڈریسز بنانے تھے, وہ ہم لوگ ان کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ہم لوگ اپنے 3 ڈریسز وہاں پر لے کر گئے. باقی ملکوں سے جو لوگ آئے تھے وہ خواتین زیادہ تھی یا مرد تھے ان میں سے؟ باقی جو پارٹیسپینٹ جو آئے تھے اس میں تو دونوں تھے, لیکن جو فیشن کانٹیسٹ میں تھے اس میں صرف ایک محمود بھائی تھے, باقی ساری خواتین تھیں. 13 جو تھی وہ عورتیں ہی تھی, ایک مرد تھا. اچھا, تو کوئی خاص تجربہ جو آپ کو ذہنی طور پر ہوا ہو؟ آپ ملک سے باہر گئی تھی اور ابھی آپ طالب علم ہیں, وہاں آپ نے کیا دیکھا, کیا سیکھا آپ نے؟ میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہم لوگوں نے 3 پوزیشن میں سے پاکستان نے 2 پوزیشن حاصل کر لی ہیں تو اس لحاظ سے ہم لوگ بہت آگے ہیں. اگر اتنی کنٹریز میں سے بہت سے دوسرے ممالک میں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, ان میں سے 14 ممالک میں سے صرف ایک ملک ہے جو اور جیت کر گیا ہے. ٹیلنٹ ہے, اس لیے ہم لوگ وہاں سے 2 پوزیشنز لے کر آئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے بھی. آپ کا اسپانسر کون تھا؟ ہمارا اسپانسر فائزہ بیوٹی کریم تھا, جنہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اور ہم لوگوں کو اس لیول لے کر گئے جہاں تک ہمیں ہونا چاہیے تھا. بیوٹی کریم کی پہچان پونیا برادرز کا نام اور لوگو فائزہ بیوٹی کریم. یہ عائشہ کا تو ہے جی وہاں جو اسے انعام ملا ہے, اور یہ محمود صاحب کا ہے جی. پونیا برادرز کی فائزہ بیوٹی کریم جنہوں نے یہ سارا میلہ سجایا تھا اور یوں پاکستان کا نام روشن کیا, ان سب کے لیے جی فائزہ کے تحفے جی. جی آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے لاسانی جو شاندار پلس ملٹی نے, کہتے ہیں کہ 100% نیچرل مصنوعی فلیور سے پاک, قدیم نسخہ جدید تحقیق جو شاندار پلس ملٹی لاسانی کا جو شاندار کی ہے. سر تھرمامیٹر. چیلنج. دوربین. تینوں ایجادات گلیلیو کی ہیں جی, غلطی ہو گئی دونوں سے جی. کس سن میں دنیا کا کون سا ملک دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت بن گیا؟ افغانستان سر. چیلنج. سوری سر. 1922 میں روس دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت بن گیا تھا جی, غلطی. ابھی تک خیر سے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. آپ کی باری ہے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اور کوئی نہیں ذات اللہ کے سوا بچانے والی.
आपका जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, लेकिन आप सब सुन लें, जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम भी, किसी को कोई कुदरत और ताकत नहीं सिवाय बुजुर्ग बरतर अल्लाह ताला के। यह है इसका सीधा तर्जुमा उर्दू जबान में जी। आपका जवाब दुरुस्त माना। आपकी बारी है जी। हमारे निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? चैलेंज। जुपिटर। मुश्तरी, जुपिटर, जवाब दुरुस्त है जी। आपकी बारी है जी। फिर अब शॉर्ट हैंड का मूजिद पिटमैन 1813 में किस मुल्क में पैदा हुआ? बर्तानिया में। इंग्लैंड या बर्तानिया, जवाब दुरुस्त है जी। लासानी जोशानदा प्लस मलट थी। आपकी बारी है जी। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। चैलेंज। यूएई। कजाकिस्तान। गलती दोनों तरफ से जी। मिस्र और इराक में इंसानी आबादी का आगाज कब हुआ? नहीं पता जी सर। चैलेंज। 406 हिजरी। कमोबेश 5000 साल कबले मसीह। यह है इसका जवाब जी। क्या सूरत हाल है जी? आपने 3 सवालों के जवाब देते हुए 300 नंबर हासिल किए हैं और अफसोस के साथ ज़िया हाशमी, आपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कोई नंबर हासिल नहीं किया। बिस्मिल्लाह। जी, एल्सोवीना का मरहला है जी। मुझे 2 दोस्तों का इंतखाब करना है जिनके दरमियान मुकाबला होगा जी। एल्सोवीना अपना पैगाम देते हैं। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। जी, आपसे सवाल है। इंग्लिश एमफिल कर रही हैं आप। पारसियों की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? चैलेंज। सॉरी सर। चैलेंज। पारसियों की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? पूरे हॉल को चैलेंज है। अवेस्ता। जंद अवेस्ता तशरीफ ले आए। आपके लिए निसा वाइटनिंग सोप का तोहफा है जी। बिस्मिल्लाह। अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ जिसकी बुलंदी 20,320 फीट है, ये किस अमरीकी रियासत में है? जी जी। चैलेंज। जॉर्जिया। जॉर्जिया ना। बस जी, सवाल खत्म हुए आपके लिए। आप दोनों के सामने जो बोतलें पड़ी हैं, ये आपको मुबारक हो जी। जी, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने आपके लिए ये वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। जी, खैर से कब ये खुशगवार हादसा पेश आया? 19 तारीख को। पूरा साल भी बताएं ना, महीना बताएं। 19/11/2017। 19/11/2017। 6 सितंबर 2017। 6 सितंबर 2017। 12 नवंबर 2017। 12 नवंबर 2017।
17 नवंबर 2017। 17 नवंबर 2017। 27 अगस्त 2017। 27 अगस्त 2017। 10 नवंबर 2017। 10 नवंबर। 10 नवंबर 2017। 19 नवंबर 2017। 19 नवंबर 2017। अमानत, आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग? अच्छा, आज तक कितने एक्सीडेंट किए आपने? अभी तक तो कोई नहीं हुआ। अभी तक कोई नहीं हुआ? पक्की बात? लाइसेंस है ड्राइविंग का? जी लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग करते हैं, लाइसेंस नहीं है। अच्छा, ठीक। कभी आप गाड़ी में बैठी जिसको ये चला रहे हों? जी। शादी से पहले कहां कहां की सैर की उन्हें? शादी से पहले कभी नहीं बैठी। जरा करीब आ जाएं ताकि जोर से बोल सकें आप। शादी से पहले आपने कौन सी फिल्म देखी इनके साथ? कोई भी नहीं। कोई फिल्म नहीं देखी? अच्छा, ये बताएं कि उन मौलवी साहब का नाम आपको पता है जिन्होंने निकाह पढ़वाया था? नहीं। नहीं। आपको पता है? जी नहीं। ये लिबास पहना हुआ था शादी के दिन? जी। जी। आपने कौन सा लिबास पहना था शादी के दिन? यही वाला पहना था। यही वाला? अच्छा, ये कितने का आया था? यही लेके आए थे। खैर से कितने का ये लिबास आपने खरीदा था? ये अम्मी ने खरीदा है, ये इसका नहीं पता। कोट कितने का बने? असी ये बड़े भाई ने लाके दिए थे। ये बड़े भाई ने लेकर दिया था। दुल्हन से पूछता हूँ, वो कहती हैं कि लिबास इन्होंने दिया था। अच्छा, बस ये आखिरी सवाल, मैं आपकी मुकम्मल खामोशी चाहिए। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आपने शादी के बाद इनको पहली बात क्या कही? मैंने नमाज का कहा था उन्हें, नमाज पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की। एक काम मेरा कर दें आप, ये फूलों को पकड़ें और यहाँ आपने एक घुटना टेक के इनको फूल पेश करने। आइए जी। प्रोग्राम खत्म हो तो ये अब आपकी अमानत है हमारे पास। ये मशीन लेके जाइएगा, वॉशिंग मशीन है ये, आपके लिए मास्टर पेंट्स ने भेजी है जी। बिस्मिल्लाह। झलक ब्यूटी क्रीम के तोहफे आप सब जी। झलक ब्यूटी क्रीम के ये तोहफे आप सबको भी मुबारक हो और आप सबको भी मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। यानी मुफ्ती समझो। सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। जी, वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से ये किस्मत का चक्कर है। जो ज्यादा नंबर हासिल कर लेगा वो इनाम का हकदार ठहरेगा। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। तो तशरीफ लाएं जी पहली मेंबर। इसको आपने घुमाना है और ये जो सुर्ख लकीर है
ये खतरे की है, इस पर आ गया तो माइनस होंगे नंबर जी। अठारह, 80, 16, 35, 7, 25, 70, 18 वापस गया 100, 31, 70, 30, 35, 30, 30। दूसरे मेहमान जी। सौ, 31, 70, 30। तीसरे मेहमान वाइटल ब्यूटी सोप के तीसरे मेहमान, इसको घुमा दें जी आहिस्ता से। चलिए 100, 10, 18, 100, 31, 70, 30, 35, 25, 35, 30, 30। चौथे मेहमान वाइटल ब्यूटी सोप के चौथे मेहमान, घुमा दीजिए जी। $88, 80। ये तीन मेहमानों का एक से नंबर आए हैं। अब और कोई मेरे पास तरीका नहीं है, अब कुरान अंदाजी करवा देता हूं, देखें जिसके जितने नंबर आ जाएं जी। 80 किसके थे? आपके थे, आप आ जाएं। ये तीन इनके नंबर हैं। पहला आप जो उठाएंगी वो इनके लिए है, दूसरा उनके लिए, तीसरा जो बच जाएगा वो तो होगा। कोई एक पर्ची उठा दीजिए। आपके 50 नंबर हैं। आपके 100 नंबर हैं जी। और ये तो आखिरी रह गया, ये 10 नंबर हैं जी। जी, वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के खेल में सिद्रा आपने 50 नंबर हासिल किए हैं, उसवा आपने 100 नंबर हासिल किए हैं, नाजिश आपने 10 नंबर हासिल किए हैं और कलसूम आपने 80 नंबर हासिल किए हैं। तो उसवा और कलसूम आप लोगों के लिए वाइटल की तरफ से कैश प्राइजेस हैं और सिद्रा और नाजिश आपके लिए वाइटल के गिफ्ट्स हैं। बिस्मिल्लाह।